Hello, my dear students. How are you? I'm sure you must be enjoying your studies. So let us start today's topic, and the topic is Kirchhoff's rules or laws. And before I start these rules or laws, let me tell you what do we mean by electric network. The term electric network is used for a complicated system of electrical conductors. यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें बहुत से कंडक्टर, बहुत से सेल्स या बैटरीज कनेक्ट करी हैं और सर्किट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, तो ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क। अब उस इलेक्ट्रिक नेटवर्क में जंक्शन किसको कहते हैं? Any point in an electric circuit or network where two or more conductors are connected together is known as a junction, और इसको ब्रांच पॉइंट भी कहते हैं। यानी कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिक नेटवर्क में ऐसा पॉइंट यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर आपस में कनेक्ट किए होते हैं, उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं या उसको बोलते हैं ब्रांच पॉइंट। देन वी हैव द थर्ड टर्म लूप और मैश। एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड ए लूप और ए मैश। नाउ वी कम टू किरचॉफ्स लॉज। देखो, हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए या करंट निकालने के लिए या वोल्टेज निकालने के लिए ओम्स लॉ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ओम्स लॉ को हम यूज़ कर सकते हैं जब करंट जो सर्किट है, दैट इज़ ए सिंपल वन। सो रिमेंबर, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन सिंपल सर्किट्स वी कैन मेक यूज़ ऑफ ओम्स लॉ। एंड व्हाट इज़ ओम्स लॉ? It states that the physical conditions of a conductor remaining the same. And what are the physical conditions? Temperature of the conductor, length of the conductor, area of cross section of the conductor, and pressure, etc. If these conditions remain the same, then the ratio of the potential difference applied across a conductor to the current flowing through it is a constant, and that constant is called resistance of the given conductor. लेकिन अगर सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो, then we cannot make use of Ohm's law. So remember, in the case of complicated circuits which cannot be reduced to simple series or parallel circuits, we make use of Kirchhoff's laws. These laws were given by the German physicist Kirchhoff in the year 1845. And these laws are, number one, Kirchhoff's first law. It is also called junction law or rule, or it is called Kirchhoff's current law, KCL. K stands for Kirchhoff, C stands for current, L stands for law. Now, what is the statement of this law? Kirchhoff's first law states that the algebraic sum of the currents meeting at a point or a junction or a branch point in an electric circuit is always zero. Mathematically, we can say that summation I equal to zero. तो ये क्या लॉ है कि मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, उसमें कोई आप जंक्शन लो, और जैसे मैंने आपको बताया जंक्शन किसको कहते हैं? किसी भी सर्किट में वो पॉइंट यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर आपस में कनेक्ट करे हों, उसको हम बोलते हैं जंक्शन। तो ऐसे जंक्शन में जो अलजेब्राइक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट दैट पॉइंट, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ we should keep in mind that this law is simply the expression of the conservation of electric charge. Conservation of charge is one of the fundamental laws of nature, and according to this law, the total charge of any isolated system in this universe remains the same. कोई भी हम सिस्टम ले लें
तो ये जो लॉ है, इट इज़ नथिंग but a consequence of the law of conservation of charge or an expression of the law of conservation of charge. Now let us illustrate this law with the help of an example. और इसको illustrate करने के लिए हम एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं. साइन मतलब चिन्ह, पॉजिटिव लेना कि नेगेटिव लेना है, और कन्वेंशन का मतलब होता है रिवाज. हमने एक रिवाज फिक्स कर लिया कि करंट को कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है, और उसको हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन, और सभी लोग फिर इसी कन्वेंशन को फॉलो करते हैं. एंड व्हाट इज दैट कन्वेंशन? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. द करंट इज टेकन एज पॉजिटिव if it is flowing towards the given point or the given junction, and it is taken as negative if it is flowing away from that point or away from that junction. So whenever you have to apply Kirchhoff's first law to any junction, you should keep in mind that the current flowing towards that junction is to be taken as positive, and that flowing away from that junction is to be taken as negative. For example, consider the figure shown here. Here O is the junction, and at this junction 5 conductors are connected together. The currents flowing through them are I1, I2, I3, I4 and I5. As is clear from this figure, current I1 is flowing towards the point O. I2 is flowing away from the point O. I3 is flowing away from the point O. I4 is flowing towards the point O. And I5 is flowing away from the point O. So therefore, according to Kirchhoff's first law or Kirchhoff's current law, I1 plus, अब देखिए I1 को मैंने पॉजिटिव लिया क्योंकि इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट O, प्लस माइनस I2. ये मैंने माइनस I2 साइन क्यों लिया? क्योंकि I2 इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन O, देयरफॉर आई टेक इट विद नेगेटिव साइन. देन प्लस माइनस I3, ये I3 भी नेगेटिव लिया क्योंकि इट इज आल्सो फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट O. देन I4 मैंने प्लस लिया बिकॉज इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट O, एंड प्लस माइनस I5 को नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि इट इज आल्सो फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट O इक्वल टू 0. सो अलजेब्राइक सम का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेनी है. पॉजिटिव हो तो ऐड करना है, नेगेटिव हो तो सबट्रैक्ट करना है. सो नाउ आई कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज I1 प्लस माइनस I2 मीन्स माइनस I2, प्लस माइनस I3 मीन्स माइनस I3, देन प्लस I4 एंड माइनस I5 इक्वल टू 0. अब मैं ये जो नेगेटिव टर्म हैं I2, I3 और I5, इनको राइट साइड पे ले जाता हूँ और लेफ्ट साइड पे रह गए I1 और I4. दैट मीन्स I1 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5. नाउ व्हाट इज I1 प्लस I4? दैट इज द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट O. And what is I2 plus I3 plus 5? That is the total current flowing away from the point O. That means, according to Kirchhoff's first law, total current flowing towards a junction or a point is equal to the total current flowing away from that point. And what is current? Current is the rate of flow of a charge. So that means it is the expression of the fact that charge cannot accumulate at a point. चार्ज कभी रुकता नहीं है. जैसे किसी पाइप में से पानी फ्लो कर रहा हो, आगे मान लो उस पाइप के साथ हम 3 पाइप्स जोड़ देते हैं, तो जितना पानी, जितना वाटर पीछे से आएगा अकेली पाइप में, उतना 3 में बट जाएगा, वो वहाँ पे रुकेगा नहीं. इसलिए चार्ज भी कभी किसी पॉइंट पे accumulate नहीं होता. So therefore Kirchhoff's first law tells us that charge cannot accumulate at a point. And now I come to Kirchhoff's second law. It is also called Kirchhoff's loop law, or it is called Kirchhoff's voltage law. And in short, in abbreviation, we can write it as KVL. K stands for Kirchhoff, V for voltage, L for law. Now, what is the statement of this law? This law states that in any closed mesh or loop or any closed part of an electric circuit, मैंने आपको बताया mesh या loop का मतलब होता है
क्लोज कंडक्टिंग पाथ, यानी कि जिस पॉइंट से चलो उसी पे वापस हमने पहुंचना है। दी प्रोडक्ट algebraic sum of the products of the various resistances and respective currents flowing through them, किस किन के प्रोडक्ट लेने हैं, जो रेजिस्टेंस हैं और उनमें से जितने जितने करंट फ्लो कर रहे हैं उनके हमने प्रोडक्ट लेने हैं, फिर उनका अल्जेब्राइक सम देखना है। दैट इज इक्वल टू द अल्जेब्राइक सम ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस एक्टिंग इन दैट मैश और इन दैट लूप। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस एक्टिंग इन दैट मैश और लूप मीन्स के उस क्लोज पाथ में, लूप में या मैश में हमने जो सेल या बैटरी जो रखी हैं उनकी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस हैं उनके अलजेब्राइक सम के बराबर लेना है। और यहाँ भी अलजेब्राइक सम का मतलब होता है कि कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, जो प्रोडक्ट होंगे करंट और रेजिस्टेंस के वो भी कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे, और जो सेल्स या बैटरीज की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस होंगी उनमें से भी कुछ पॉजिटिव होंगी और कुछ नेगेटिव होंगी। नाउ लेट अस इलस्ट्रेट दिस लॉ, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स इट इज सिंपली द एक्सप्रेशन ऑफ the law of conservation of energy. Now let us have an illustration of Kirchhoff's second law, और इसके लिए भी हम दो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। पहली है फॉर द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस और दूसरी है फॉर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। सो रिमेंबर द फर्स्ट कन्वेंशन इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव if we are traversing the given loop in the direction of flow of current, यानी कि जिस लूप या मैश में से आप निकल रहे हैं अगर आप भी उसी तरफ जा रहे हैं और करंट भी उसी तरफ जा रहा है, जैसे मान लो हम कोई कंडक्टर है बी, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी और हम भी उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं यानी कि उसमें से निकल रहे हैं उसके साथ साथ फ्रॉम ए टू बी, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हम लेंगे पॉजिटिव। लेकिन मान लो करंट तो जा रहा है फ्रॉम ए टू बी, हम जा रहे हैं फ्रॉम बी टू ए, देन दी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव। सो प्लीज रिमेंबर दिस साइन कन्वेंशन। आई रिपीट दिस, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव if we are traversing the given loop in the direction of flow of current, and it is taken as a negative if we are traversing the loop in a direction opposite to that of flow of current. So that is the first convention for the product of current and resistance. Now we come to the second convention, which is regarding the electromotive force of the given cells or the batteries. The EMF, that means electromotive force of a cell or a battery, is taken as positive if we meet its negative pole first. आपको पता है किसी भी सेल के दो पोल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव पोल, एक होता है नेगेटिव पोल। और जब किसी सर्किट में सेल या बैटरी को दिखाना है तो एक हम लंबी लाइन ड्रॉ करते हैं, एक छोटी लाइन ड्रॉ करते हैं। लंबी लाइन का मतलब होता है वो पोल पॉजिटिव है और छोटी लाइन का मतलब वो पोल नेगेटिव है। तो मान लो हम किसी सर्किट में से, जैसे हम ए से बी जा रहे हैं और वहाँ पे एक सेल लगा है, जब हम ए से बी गए तो जो सेल लगा है उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ई, और जब हम जा रहे हैं ए टू बी तो पहले हमें मिलता है नेगेटिव उसका पोल। अगर नेगेटिव मिलता है तो हम उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेंगे पॉजिटिव, लेकिन अगर पहले हमें पॉजिटिव पोल मिलता तो फिर हम उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेंगे नेगेटिव। सो ये कन्वेंशंस हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस ऑफ द सेल्स और द बैटरीज कनेक्टेड इन द गिवन लूप और मैश। अब इसको और समझने के लिए लेट अस कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक रेजिस्टेंस R1 है और यहाँ पे इसके साथ एक सेल जोड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E1, और नीचे ये रेजिस्टेंस R2 है और इसके साथ सेल जोड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E2, और एक रेजिस्टेंस मैंने बीच में जोड़ दिया R3 और इसमें कोई सेल या बैटरी नहीं है। यहाँ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने कनेक्ट नहीं करी।
और मैंने नाम रख लिया इसका ABCDEF। अब देखिए, सबसे पहले कोई भी सर्किट हो जिसमें हमने किरचॉफ लॉ अप्लाई करने हों, तो पहला स्टेप होता है कि वी शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन दैट सर्किट इन अकॉर्डेंस विद किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। और वो डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए जो करंट शुरू करना है किसी भी सेल के पॉजिटिव पोल से शुरू करना है और नेगेटिव पे उतना ही करंट ख़त्म करना है। यानी कि उस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव पोल टुवर्ड्स द नेगेटिव पोल। अब मान लो ये जो सेल E1 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला है, इसके पॉजिटिव से करंट शुरू करता I1, वो I1 R1 में से पास किया, फिर A पे पहुंचा, A से E पे आया। इस तरफ जो नीचे सेल है जिसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 है, उसके पॉजिटिव से मान लो करंट I2 शुरू करता है, वो D पे पहुंचा, D से कहाँ पे आ गया, E पे। अब एट द जंक्शन E टोटल करंट आ रहा है I1 A की तरफ से आ रहा है और I2 आ रहा है D की तरफ से। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितना करंट इस जंक्शन पे आएगा उतना करंट यहाँ से जाएगा। सो वो जो करंट टोटल कितना बन गया फिर जाने वाला I1 प्लस I2, वो R3 में से पास करके F पे पहुंचा, और जब F पे आया तो यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा करंट, थोड़ा B की तरफ जाएगा, थोड़ा C की तरफ। अब कितना B की तरफ जाएगा, कितना C की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया कि जितना करंट किसी सेल या बैटरी के पॉजिटिव से शुरू करता है उतना ही करंट उसके नेगेटिव की तरफ आता है। तो क्योंकि सेल E1 से शुरू किया था I1, इसलिए नेगेटिव की तरफ भी I1 ही जाएगा, यानी कि F से जो B की तरफ करंट गया वो I1 और इसी तरह जो C की तरफ आया दैट इज़ I2। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन दिस सर्किट इन अकॉर्डेंस विद किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब मैं इस सर्किट को अप्लाई करूंगा किरचॉफ सेकंड लॉ। देखो, ये जो मैंने ऐसे करके बनाया इसका मतलब कि आई एम ट्रेवर्सिंग द लूप। कौन सा, ये देखो, सबसे पहले मैं कर रहा हूँ अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ टू द मैश और द लूप। कौन सा, A से E पे जाना है, E से F पे, फिर B पे और फिर वापस A पे। यानी कि वो सर्किट बन गया AEFBA। हम A से चले थे, A पे ही वापस आए, इसलिए ये क्लोज सर्किट बन गया, यानी कि मैश या लूप बन गया। और इसको कैसे ट्रेवर्स करना है वो मैंने ये देखो एरो हेड्स बना के लिखा है। A से मैंने E की तरफ जाना है, फिर F की तरफ जाना है, फिर B की तरफ जाना है और वापस A। सो लेट अस अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ। तो A से चले करंट है I1, लेकिन A और E के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि ज़ीरो रेजिस्टेंस है, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ज़ीरो ही आ गया। फिर जब हम E से F पे गए तो आप देख सकते हैं करंट है I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस कितना है R3। अब हम भी जा रहे हैं फ्रॉम E टू F, करंट भी जा रहा है फ्रॉम E टू F। दैट मीन्स वी आर ट्रेवर्सिंग द लूप in the direction of flow of current, and therefore the product of current and resistance will be taken as positive. That means I1 plus I2 ये करंट हो गया इंटू R3 और इसको मैंने लिया पॉजिटिव। आगे चलो, F से मैंने B पे जाना है, करंट I1 है लेकिन रेजिस्टेंस कोई नहीं है, सो प्रोडक्ट ज़ीरो ही आ गया। फिर आगे चलो, B से A की तरफ रेजिस्टेंस R1 है, करंट I1 है और हम भी B से A की तरफ जा रहे हैं और करंट भी B से A की तरफ। सो प्रोडक्ट ऑफ I1 एंड R1 विल बी टेकन एज पॉजिटिव। सो प्लस आ गया I1 R1, बस और कोई इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। अब हम देखते हैं पे राइट हैंड साइड पे जो अलजेब्राइक सम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस का आना है वो कितना है। तो A से E तक कोई सेल या बैटरी नहीं, E से F तक कोई सेल या बैटरी नहीं, F से B तक कोई सेल या बैटरी नहीं। अब B से A तक एक सेल है जिसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितनी है E1, और जब हम B से A की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा पोल हमें पहले मिला, नेगेटिव पोल। और जो हमारी साइन कन्वेंशन है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल और द बैटरी, वो कहती है कि अगर नेगेटिव पोल पहले मिलता है तो वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेनी है हमने पॉजिटिव। सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू E1। सो दैट इज हाउ वी कैन अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ टू एनी क्लोज सर्किट। अगेन now I apply Kirchhoff's second law to the loop EFCDE, traversing it in the direction from E to F, F to C, C to D, D to E, E से चले E पे वापस। So let us apply E to F, current is I1 plus I2, resistance is R3,
current is flowing from E to F, we are also traversing the loop from E to F. So therefore the product of I1 plus I2 and R3 is taken as positive. फिर हम आए F से C तक, कोई रेजिस्टेंस नहीं, फिर गए C से लेके D तक, करंट I2, रेजिस्टेंस R2, हम भी जा रहे हैं C to D, करंट भी जा रहा है C to D, तो प्रोडक्ट ऑफ I2 एंड R2 विल बी टेकन एज पॉजिटिव. फिर हम गए D to E, कोई रेजिस्टेंस नहीं. अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की. E से F तक कोई सेल जहाँ बैटरी नहीं, F से C तक कोई सेल जहाँ बैटरी नहीं, C से D तक देर इज़ वन सेल हुज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज E2. और जब C to D जा रहे हैं तो पहले कौन सा पोल हमें मिला? नेगेटिव. एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन this electromotive force will be positive. That means it is equal to E2. Now I apply the Kirchhoff's second law to the closed circuit or the mesh or the loop A, B, C, D, A, traversing it in the direction A to B, B to C, C to D and back to A. Let us apply A to B. You can see from the figure that A to B the current is I1 and resistance is R1, but we are traversing the loop from A to B and the current is flowing from B to A. That means the product of I1 and R1 will be taken as negative. So I have written here minus I1 R1. आगे चलो. B to C, there is no resistance. C to D, current is I2, resistance is R2. The current is flowing from C towards D. We are also traversing the loop from C to D. So this product of I2 and R2 will be positive. फिर हम गए D से A तक, तो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है. So there is no product of current and resistance. So लेफ्ट हैंड साइड पे इतना. अब राइट हैंड साइड पे आओ. A से B तक गए तो हमें सेल मिला जिसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E1, लेकिन पहले कौन सा पोल मिला हमें? पॉजिटिव. और पॉजिटिव मिला है तो हमारी साइन कन्वेंशन कहती है कि इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी नेगेटिव, माइनस E1. फिर हम B से C तक गए तो कोई सेल जहाँ बैटरी नहीं, C से D तक गए तो सेल आ गया जिसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E2. और किस पोल को पहले मिले हम? जिसकी नेगेटिव पोल को मिले. इसलिए अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस सेल विल बी टेकन एज पॉजिटिव. तो यहाँ पे आ गया प्लस E2. सो दैट इज how we can apply Kirchhoff's second law to any closed mesh or circuit or loop. अब एक बात मैंने आपको यहाँ पे बतानी है. प्लीज़ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. बेशक जैसे हमने ये पहला जो ट्रेवर्स किया वो A से E की तरफ गए, फिर F की तरफ गए, B की तरफ गए, फिर हम अगर उल्टी डायरेक्शन में इसको करते तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आता दैट वुड हैव बीन द सेम. So we can traverse a given loop in any direction, the final result is the same. अब एक पॉइंट आपने नोट करना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल चॉइस में भी आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी आता है, तो इसलिए मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ. किरचॉफ फर्स्ट एग्जाम में आता है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ. अगर ये मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक होगा ऑफ चार्ज. So Kirchhoff's first law is a consequence of the law of conservation of charge, and Kirchhoff's second law is a consequence of the law of conservation of energy. So please remember, Kirchhoff's first law is a consequence of the law of conservation of charge, and Kirchhoff's second law is a consequence of the law of conservation of energy. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please share, like and subscribe to my channel. Thank you very much.